को मालूम नहीं था कि माँ है खो है। हाँ। मैं तो डर गया। वो आगे गया मैं, वो कहीं बोली नहीं, मैं नर्मदे हर करे, वो बोले नहीं चाले नहीं, तू जाएगा बेटा, सीधा जाएगा। की परिक्रमा करने से क्या फल मिल जाते हैं? ये फल भगवान के कहे नहीं, वो साधु संत का दर्शन है, अपने कोई का कोई ना लाभ मिलना चाहिए, बाकी कोई नहीं। अच्छा महाराज जी, माँ नर्मदा जी की परिक्रमा क्यों करी जाती है? का केंद्र है, त्याग की भूमि है, प्रेम भाव है, समर्पण है, जीवन की शिक्षा है, मूल आधार है। अच्छा। क्योंकि महत्वपूर्ण तो जीवन में शिक्षा ही है ना। हाँ। और जीवन को समझना ही महत्वपूर्ण है। तो जो नर्मदा खंड में मिलता है, जो भी वेद पुराण इतिहासों में कहीं भी दर्ज कर लो, चाहे जहाँ भी पढ़ा लिखा सुना, वो सब कुछ मुझे, मैं अपने अनुभव की बात करूँ तो मुझे यहाँ नर्मदा खंड में मिला। अच्छा। জয় হো মা নর্মদা, জয় হো মা ভগবতী মা রেবা। মা নর্মদা যে সুন্দর দর্শন করছেন ভিডিওর মাধ্যমে, মা নর্মদার দর্শন মাত্রই মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি, জীবনের চরম সত্যকে উপলব্ধি করা যায়। রহস্যে ভরা মা নর্মদা নদীর তট। নমস্কার। আজ আমরা এমন এক পথে পা রেখেছি যেখানে বাতাসের প্রতিটি স্পন্দনে মিশে আছে প্রাচীন মন্ত্র, আর জলের কোলতানে শোনা যায় মা নর্মদার আশীর্বাদ। মধ্যপ্রদেশের বড়বাহর ধুলোমাখা পথ বেয়ে আমরা আজ পৌঁছাব অতি প্রাচীন পাণ্ডবকালীন সেই দরবারে, যাকে এই অঞ্চলের মানুষ বলে শরৎপুরা ভিলোটদেব। বড়হা ছাড়িয়ে আমাদের যাত্রা এখন এক অজানা রোমাঞ্চের পথে। সামনেই চড়ার পথে দর্শন হল রহস্যময়ী চৌরল নদী। এই সেই পবিত্র ধারা যা পরম মমতায় বিলীন হয়েছে মা নর্মদার বুকে। লোকচক্ষুর আড়ালে এই চৌরল নদীর নিস্তব্ধ চরে আজও কত সিদ্ধ মহাত্মা আর গুপ্ত সাধু ঘোর তপস্যায় নিমগ্ন, তা কেবল ঈশ্বরই জানেন। কিন্তু আমাদের গন্তব্য আরও গভীরে, যেখানে অপেক্ষায় আছে এক প্রাচীন রহস্য। শরৎপুরার সেই অভিশপ্ত সুন্দর জঙ্গল। নিস্তব্ধতা এখানে কথা বলে, আর বন্য পশুর নিঃশ্বাসে মিশে থাকে আদিম আতঙ্ক। এই দুর্ভেদ্য অরণ্য চিরে আমরা এগিয়ে চলেছি ভেলোটদেবের মন্দিরে, যেখানে ভক্তি আর রোমাঞ্চ হাত ধরাধরি করে চলে। অবশেষে সেই কাঙ্ক্ষিত ক্ষণ, সুন্দর তরণে ঘেরা শরৎপুরা তালাবের পারে আমরা এসে দাঁড়ালাম হাজার হাজার বছরের পুরনো ইতিহাসের সামনে। পাণ্ডবকালীন এই প্রাচীন ভিলোটদেব মন্দির, পাথরে পাথরে খোদাই করা আছে অজ্ঞাতবাসের অজানা রহস্য, যেখানে আজও সময় থমকে আছে এক নর্মদার এই প্রাচীন বাঁকে, যেখানে ইতিহাস আর অলৌকিকতা মিলেমিশে এক হয়ে যায়। সেখানেই জন্ম নেয় এক অমীমাংসিত রহস্য। তিনি ভিলোটদেব। কোনো রাজপ্রাসাদে নয়, তার জন্ম হয়েছিল ত্যাগের এক অগ্নিগর্ভ মুহূর্তে। পুরাণ বলে না, কিন্তু এই মাটি সাক্ষী আছে। যখন দস্যুদের থাবায় বিপন্ন ছিল গরু আর গ্রাম্য সভ্যতা, তখন এক সাধারণ রাখাল হয়ে উঠেছিলেন অজেয় রক্ষক। নিজের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তিনি যা রক্ষা করেছিলেন তা আজও এই জনপদে অলৌকিক হয়ে বিরাজ করছে। মৃত্যু তাকে শেষ করতে পারেনি, বরং দিয়েছে দেবত্ব। লোকে বলে আজও অমাবস্যার রাতে শ্বেতশুভ্র ঘোড়ায় চড়ে তিনি পাহারা দেন নর্মদার তীর। তিনি কি শুধু ইতিহাস, নাকি আজও জাগ্রত কোনো এক দৈব শক্তি? রহস্যের উত্তর লুকিয়ে আছে কেবলই বিশ্বাসে। রাতের অন্ধকারে যখন নর্মদার জল রূপালী রূপ নেয় আর তীরের অরণ্য নিস্তব্ধ হয়ে আসে, তখন কান পাতলে এক অদ্ভুত শব্দ শোনা যায়। দূর থেকে ভেসে আসা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। লোকে বলে তিনি আজও পাহারা দেন, তিনি ভিলোটদেব। কিন্তু কে এই রহস্যময় শক্তি? কেন আজও নর্মদার নির্জন পথে পরিক্রমাবাসীরা তার অদৃশ্য অস্তিত্ব অনুভব করেন? কেউ তাকে দেখেছে শ্বেতশুভ্র অশ্বারোহী বীর হিসেবে, আবার কেউ তার ছায়া দেখেছে মা নর্মদার পাহারাদার রূপে। তিনি কি কেবলই এক লোকগাথা, নাকি কোনো এক প্রাচীন ত্যাগের অবিনশ্বর তেজ, যা আজও এই মাটির ধূলিকণায় মিশে আছে? নাগদেবতার আশীর্বাদধন্য এই ক্ষেত্রপাল, যা চোখের পলকে শান্ত হয় বন্য জন্তুর গর্জন।
বিজ্ঞানের যুক্তিতে যা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব, ভক্তির আলোয় সেখানেই প্রকাশ পান বিলোট দেব। নর্মদা তীরের এই ধূলিধূসর পথে যখন আপনি একা হাঁটবেন, খেয়াল রাখবেন আপনি হয়তো একা নন, কোনো এক অদৃশ্য জোড়া চোখ আপনাকে আগলে রাখছে। কারণ এই মাটির রক্ষাকর্তা আজও জাগ্রত। शङ्कर हर हर शम्भो हर हर शङ्कर जय शिव शम्भो जय शिव शङ्कर हर জনশ্রুতি বলে এই প্রাচীন মন্দিরের পাথরে পাথরে আজও এক অদ্ভুত শিহরণ খেলা করে। স্থানীয়দের বিশ্বাস, বিলোট দেব এখানে কেবল বীর নন, তিনি আবির্ভূত হন এক প্রকাণ্ড নাগ রূপে। সেই দিব্য নাগের দর্শন পাওয়া মানেই নাকি ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাওয়া। লোককথা বলে যার ওপর দেবের কৃপাদৃষ্টি পড়ে তার জীবন ভরে ওঠে অঢেল ধন সম্পদে। কিন্তু সাবধান, এই অলৌকিক প্রাপ্তির আড়ালে লুকিয়ে আছে এক গভীর পরীক্ষা। আপনি কি প্রস্তুত সেই রহস্যময় দর্শনের মুখোমুখি হতে? উত্তরটা কেবল শরৎপুরার এই প্রাচীন মাটিই জানে। हर हर शङ्कर जय शिव शम्भो जय शिव शङ्कर हर हर সময় স্রোতে বদলেছে পথ। ওকারেশ্বর বাঁধের বিশাল জলরাশি আজ মুছে দিয়েছে আদিম সেই চেনা পরিক্রমা। তাই খুব কম যাত্রী পৌঁছাতে পারেন এই নির্জন শরৎপুরায়। কিন্তু মা নর্মদার এই প্রাচীন তপভূমি আজও অমলিন। এখানকার প্রতিটি ধূলিকণায় লুকিয়ে আছে সহস্র বছরের সাধনা। আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন সেই অস্ফুট আহ্বান? এখানে দাঁড়ালে প্রতিটি বাঁকে অনুভব করা যায় এক অলৌকিক স্পন্দন, সেই রহস্য যা কেবল চোখের দেখায় নয়, অনুভবের অতল গহ্বরে ধরা দেয়। মা নর্মদার সেই প্রাচীন মায়া আজও আপনাকে ডাকছে। नर्मदे 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 मैं तो बजता रहूं सदा सर्वदे, मैया बजता रहूं मैं सदा सर्वदे। नर्मदे 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 मैया भजता रहूं मैं सदा सर्वदे, मैया भजता रहूं मैं सदा सर्वदे। नर्मदे 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 बोल अमरकंटक वाली मैया की जय। नर्मदे नर्मदे हर महाराज नर्मदे। কেন এই আদিম পথ চলা? কি এমন লুকিয়ে আছে মা নর্মদার এই দুর্গম তটরেখায়, যার আকর্ষণে হাজার বছর ধরে মানুষ ঘর ছাড়ে? কোনো সাধারণ নদী নয়, এ এক জীবন্ত তপভূমি। বাঙালির প্রাণের আবেগে মা নর্মদার সেই মহিমা পৌঁছে দিতেই আমাদের এই যাত্রা। রোদ, জল, কষ্ট উপেক্ষা করে কেন এই কৃচ্ছ সাধন? কিসের সেই পরম প্রাপ্তি? পরিক্রমাবাসীদের মুখ থেকেই শুনব সেই অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা। রহস্যের কুয়াশা সরিয়ে আজ আমরা উন্মোচন করব নর্মদা পরিক্রমার সেই অবিনশ্বর সত্য। তৈরি তো আপনি? जय शिव शङ्कर हर हर शम्भो हर हर शङ्कर जय शिव शम्भो। कहाँ से हो महाराज जी? पुणे से। अच्छा, नाम? हाँ, आपका नाम? रामदास भिकाजी अरगड़े। अच्छा, कहाँ से उठा है परिक्रमा? ओंकारेश्वर। हाँ, महाराज जी कैसे लग रहे हैं? वो बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, हाँ, आनंद है वो सब। हम्म। मैया की कृपा से कोई नहीं दिक्कत आई। महाराज जी थोड़ी सी अनुभव बताइए ना, कैसा अनुभव करा हमको परिक्रमा? ऐसा अनुभव आया हाँ कि जय टाइम हमारा को ऐसा रास्ता जंगल पे सुल्पानी में, हाँ उसके हम इधर उधर भटकते, हाँ तो अचानक कोई ना कोई सामने आता है, वो साक्षात मैया रूप लेकर उधर आए, वो रास्ता बताती, यहाँ साक्षात्कार होगा अच्छा सुल्पानी में। अच्छा, आपका दर्शन हुआ? दर्शन मुझे वो माँ वो उधर तक कोई नहीं, वो अचानक खड़ी, वो तो हम तो डर गया। वो जंगल में कोई नहीं, मैं अकेला था, अच्छा अकेला चल रहा, ऐसा था तो मेरा शरीर का वो अचानक वो खड़ी होती जंगल में सुल्पानी से अच्छा आगे अच्छा छपरवाल में।
तो मैंने माँ वो गई, हम्म, बोले तू जाएगा सीधा जाएगा। हाँ, जाएगा तो बोले देखा वो पीछे तो कोई नहीं। अच्छा, मेरे को मंगवा वाला क्या है क्या है नहीं, कि थोड़ी घबराहट आई। हम्म, ये अनुभव मेरे जीवन में आया माँ का। अच्छा, पर मेरे को मालूम नहीं था कि माँ है खो है। हाँ, मैं तो डर गया। हम्म, वो आगे गया मैं, हम्म, वो कहीं बोली नहीं, मैं नर्मदे हर करे, वो बोले नहीं चाले नहीं, तू जाएगा बेटा सीधा जाएगा। आप क्या बोलना चाहते हो? क्या बोलने का, माँच्या कृपा आशीर्वादाने परिक्रमा मेरे सफल हुई। हम्म, अभी वो संकल्प पूर्ण कल होने वाला है। हाँ, वो मैं अच्छा कृपा आशीर्वादाने होना हो अच्छा होगा, इसके बड़ा कोई नहीं। अच्छा, हाँ। माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करने से क्या फल मिल जाते हैं? ये फल भगवान के कहीं नहीं, वो साधु संता का दर्शन है, आपने कोई का कोई ना लाभ मिलना चाहिए, बाकी कोई नहीं। अच्छा, ये का आपने को पैसा अड़का कोई गाड़ी घोगला अच्छा, चाहिए। अच्छा, अच्छा, मेरी उम्र हाँ, 76 है। अच्छा, मेरे सब अच्छा है घर में। हम्म, माँ के ऐसे दर्शन घड़ो, हम्म, अच्छा बॉडी रहनी चाहिए आणि नामस्मरण में जिंदगी जाओ, हाँ, सबका कल्याण करो भगवान। हाँ, ये हाँ। माँ के चरणी प्रसाद हर मनुष्य को यहाँ आना चाहिए एक आना बार। चाहिए। ये आने के बाद मालूम होना चाहिए होता है, हाँ, ऐसा नहीं। माँ के आया 4 जब महीने लगा, कहीं को 5 महीने लगा है, वो माँ पार चलते ने वो बीच आया, उसको दिक्कत नहीं कोई। नर्मदे हर, नर्मदे हर 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 नर्मदे हर। हर। ठीक है महाराज जी, चाहिए। বিচার আর ভাবনা বিসর্জন দিয়ে যখন কেউ মা নর্মদার চরণে নিজেকে সঁপে দেয়, মা তখন তার সমস্ত অহংকার কেড়ে নেন। এই এক অদ্ভুত টান, যিনি একবার মায়ের পরিক্রমা করেন তার অন্তরে জাগে প্রবল বৈরাগ্য। মায়ের সান্নিধ্য ছাড়া তখন আর কিছুই ভালো লাগে না। এই কঠিন পথ চলার শেষে জোটে সেই চরম প্রাপ্তি আর আত্মিক তৃপ্তি, যা পার্থিব সব সুখের অতীত। हर हर शंकर जय शिव शंभो, जय शिव शंकर हर हर शंभो, हर हर शंकर नर्मदे हर, जय शिव। महाराज जी, माँ नर्मदा जी की परिक्रमा क्यों करी जाती है? भाई क्यों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया है, हाँ, लेकिन जो नर्मदा खंड में है ना, वो कहीं नहीं है। अध्यात्म का केंद्र है, त्याग की भूमि है, हाँ, प्रेम भाव है, समर्पण है, जीवन की शिक्षा है, मूल आधार है। अच्छा, क्योंकि महत्वपूर्ण तो जीवन में शिक्षा ही है ना, हाँ, और जीवन को समझना ही महत्वपूर्ण है। तो जो नर्मदा खंड में मिलता है, जो भी वेद पुराण इतिहासों में कहीं भी दर्ज कर लो, चाहे जहाँ भी पढ़ा लिखा सुना, वो सब कुछ है। मुझे, मैं अपने अनुभव की बात करूँ तो मुझे यहाँ नर्मदा खंड में मिला। अच्छा, और मैं गुरु गोरखनाथ जी का अनुयायी हूँ, स्थित प्रज्ञा मुनि की शरण है। 24 गुरुओं से मैं शिक्षित हूँ और खगोल का मैंने अध्ययन किया है। मैं समय की परिभाषा पे काम करता हूँ और उसका मैंने एक सब्जेक्ट तैयार किया है, और मेरा सब्जेक्ट सिर्फ बेटी की सुरक्षा को लेके है, और यही मेरा जीवन है, भ्रमण करना। क्योंकि इससे मिलता है, कहते हैं ना कि कर्म बिन योग नहीं और योग बिन ज्ञान नहीं, तो कर्म करना आवश्यक है, और कर्म ही प्रधान है। और आज कर्महीनता के कारण तो भूखमरी हो रही है, अपराध हो रहे हैं, क्योंकि किसी के पास कर्म नहीं है तो क्या करेगा, अपराध ही करेगा, जी, है ना। तो नर्मदे यार, खुश रहो। महाराज जी, आपने ओंकारेश्वर से परिक्रमा उठाया? हाँ, ओमकारेश्वर से परिक्रमा उठाई है। हाँ, और कुछ ही देर दूर में ही तो ओंकारेश्वर आ ही जाएगा। हाँ, लेकिन मेरी तो फिर से शुरू हो जाएगी, कैसे? क्योंकि ये नर्मदा खंड से जाने का बाहर दिल ही नहीं करता। ऐसा? हाँ, जो मानवता यहाँ दिखाई देती है ना, वो कहीं नहीं रही। जो सभ्यता यहाँ दिखाई देती है, नारियों के अंदर, बच्चों के अंदर, और बाहर अगर नर्मदा खंड से अगर बाहर जाते हैं ना, तो बड़ी बड़ी बुजुर्गों का, कई बुजुर्ग औरतों का भी पहनावा ऐसा है, ऐसे कपड़े हैं कि उनको देखने का मन नहीं करता। और यहाँ नारी को देखते हैं ना, तो उसका सम्मान करने का दिल करता है। यहाँ संस्कृति है, आचरण है, सभ्यता है, तो इससे बाहर जाने का दिल नहीं करता। तो मेरा ख्वाहिश यही है कि अब मैं नर्मदा खंड में ही रहूँ। अच्छा, अच्छा, बाहर तो मैंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक का भ्रमण किया, रामेश्वरम तक का। अच्छा, बाहर कुछ नहीं है। जो कहते हैं ना कि जो माई की सेवा में है ना, जो माई की गोद में है, वो कहीं है भी नहीं। और कहते हैं ना कि हृदय बसा ले मेरे राम को, करेंगे कृपा त्रिपुरारी, और मत मत कहने अमृत प्यादे, आदि शक्ति भवानी। तो माता पिता ये भवानी है और वही त्रिपुरारी है।
बाकी संसार में मिथ्या है। मतलब हर मनुष्य को माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करना चाहिए। सबको आना चाहिए। जो यहाँ है वो कहीं भी नहीं है। अच्छा, हाँ, और जो यहाँ आ गया वो कहीं और जाने की सोच भी नहीं सकता। ऐसा? कहते हैं ना कि सहस्त्र गुणा है। हमारी सोच से हम इतना सोचते हैं कि वो हमारी सोच से 10 गुणा 70 गुणा आगे मिलती है। अच्छा, हमारी सोच से हम सोच भी नहीं सकते। और उसके शब्दों में कहूँ तो शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ यही है। सब कुछ चाहिए। हाँ, इससे आगे तो शायद मैं भी नहीं जा पाऊंगा। मैं भी नर्मदा खंड में ही आगे संतुष्ट रहता हूँ, और बाकी संसार में कहीं नहीं है। जो संस्कृति है, मर्यादा है, सभ्यता है और प्रेम भाव है, वो यही है, बाकी और कहीं नहीं है। ये नर्मदा खंड जीवित है, बाकी तो सब शमशान हो रहा है। अच्छा, নর্মদে হার। একবার ভেবে দেখেছেন, এটা কোনো সাধারণ পথ নয়। এই ধুলোর প্রতিটি কণা মায়ের আশীর্বাদে ধন্য। এখানে বিচার নেই, ভাবনা নেই, আছে শুধু নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। এই পথে পা রাখলে মা আপনার সমস্ত অহংকার কেড়ে নেবেন। যত এগোবেন মনে এক আশ্চর্য বৈরাগ্য দানা বাঁধবে। তখন মাকে ছাড়া থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। পরিক্রমার প্রতিটি বাঁকে লুকিয়ে আছে সেই চরম তৃপ্তি যা জীবনের সব চাওয়াকে পূর্ণ করে দেয়। মায়ের মহিমা আর এই আধ্যাত্মিক যাত্রার আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন। নর্মদে হর।